سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو زندگی ہم جی رہے ہیں بڑی مشکل ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ دنیا دار ہے چاہے وہ دین دار ہے، لیکن مشکل ہے، بلکہ مشکل نہیں کہنا چاہیے، بہت ساری مشکلیں ہیں اس میں۔ ایسے ہی ہے جیسے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ خوشیاں، غم، دکھ، سکھ، ڈیفیکلٹیز اور جوئے، ہر چیز یہ فل پیکج ہے۔ کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ کون سا ایسا رستہ اختیار کریں کہ یہ جو دنیا کا جو وقت ہے آسان ہو جائے، بہتر ہو جائے اور اچھے طریقے سے بس طے پا جائے تاکہ ہم اپنی منزل کو روانہ ہوں۔ جانا ہے سب نے، ہر ایک کا وقت تو آنا ہے، آپ کا بھی میرا بھی۔ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ بھی اپنے وقت پر چلے گئے، جو ہیں انہیں بھی جانا ہے، اور جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلتے چلے آئیں گے۔ جانا ہے، اس بات کو پلے باندھ لیں، جانا ہے، تیاری کریں۔ اس کی مثال بزرگ اس طرح دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرین اسٹیشن پر بیٹھا ہو، پتا ہو کہ میری گاڑی آ رہی ہے 2-4 گھنٹے میں، یا ابھی مجھے انتظار کرنا ہوگا، میری گاڑی صبح آئے گی، رات مجھے اسٹیشن پہ ہی گزارنی ہے، اور وہ وہاں پہ کسی فرنیچر کمپنی کو آرڈر کر دے کہ لاؤ بھائی مجھے یہاں پہ ایک لگژری بیڈ لا دو، کسی بلڈر کو بنا لے بھی مجھے یہاں کمرہ بنا دو، اس میں ہیٹر بھی لگا دو، یا گرم موسم ہے تو اس میں اے سی لگا دو، آرتھوپیڈک جو میرا میٹرس ہے وہ بھی ڈال دو، بہترین جو بیڈنگ ہے وہ بھی بچھا لو، وہ جو کمرہ میرے لیے بنایا اس کو پینٹ بھی کر دو۔ تو دیکھنے والے کہیں گے یار بڑا بیوقوف آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی ٹرین آ رہی ہے، یہ مسافر ہے، یہ تو صرف ایک شام، ایک شب، ایک گھڑی، ایک رات ادھر گزارنی ہے، اس نے صبح اس نے اپنی ٹرین پکڑ لینی ہے سونر اور لیٹر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ذرا بات کو سمجھیں، یہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹرین پکڑنی ہے اور اپنی منزل کی طرف جانا ہے، ٹرین آ رہی ہے، بس کب آئے گی ایگزیکٹ ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن آنی ہے، یہ کنفرم ہے، اور ہم جناب دنیا کی آرام و آسائش اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہم نے دل لگا لیا، مائنڈ سیٹ کر لیا کہ ہاں بھی میں نے اس طرح روم بنانا ہے، بیڈ لینا ہے، کمفرٹیبل کرنا ہے، مطلب کا پینٹ ہوا ہو، بیڈنگ بڑی کمفرٹیبل ہو، تو پھر ہمیں بہت ساری اس میں الجھنیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور بہت سارے دکھ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہر کام ہمارے موڈ اور مزاج کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، عزیز و اقربا، ہمارے کاروبار، ہمارے سوشل افیئرز، ہمارے معاشرتی معاملات، ہماری جو ہابیز ہیں، وہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہوتی، پھر ہم اپسیٹ ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ہلکان ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی صحت کو ریسٹور کرنے کے لیے سارا پیسہ، سارا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را اس تھوڑی سی زندگی کو کامیاب بنائیں اس طرح سے کہ آپ دنیا میں بھی وقت پیسفل گزاریں، اچھا گزاریں، آپ کی قبر بھی سنور جائے، اچھی ہو جائے، اور آخرت میں بھی جو معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ خیر والے ہوں۔ اس کے لیے تیاری کر لیں۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ بھئی ہر وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
करने का हुक्म दिया है और हर उस काम से बाज आ जाएं जिसके ना करने का हुक्म है कि भाई ये नहीं करना। नहीं जी, हम तो इंसान हैं, बहुत सारी कोताहियां हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बेजारशात बिल्कुल हो जाती हैं। इन गलतियों, कोताहियों, लग़ज़िशों के बावजूद हमें जुस्तजू करते रहना है, रजू करते रहना है, खैर और भलाई का कामों में हिस्सा लेते रहना है और हमें हक की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहना है। आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारी अहादीस मुबारका और बहुत सारे बुजुर्गों से कि भाई हर मामला जो है वो दुआ से शुरू किया करें। मिसाल के तौर पर, भाई मैं बाथरूम में जाने लगा हूं तो उसकी दुआ है, मैं खाना खाने लगा हूं तो उसकी दुआ है, मैं खाना खा चुका हूं उसकी दुआ है, घर से निकलने लगा हूं उसकी दुआ है, सफर पर निकलने लगा हूं उसकी दुआ है, घर वापस लौट के आया हूं तो दाखिल होने की दुआ है। भाई ये सारी दुआएं, ये कलमात इसीलिए हैं कि आपका और आपके रब का एक रब्त कायम रहे, एक कनेक्शन बना रहे, एक ब्रिज कायम रहे, सिलसिला टूटने ना पाए। जरा गौर कीजिएगा, आपने क्या दुआ पढ़ी, कितनी बार पढ़ी, वो बाद की बातें। भाई मैं हर काम करने से पहले अपने रब को याद करता हूं, उसकी बारगाह में दुआ करता हूं। अल्फाज क्या हैं ये भी छोड़ दें। भाई मुझे अरबिक पर बड़ा दस्तरस है, बड़ा अबूर है, मैं बड़ी लंबी लंबी और अरबिक दुआएं मांगता हूँ, अच्छी बात है। नहीं जी, मुझे कोई अच्छी अरबिक दुआएं नहीं आती, बड़ी बड़ी मुश्किल दुआएं नहीं आती, मैं तो अपने सादा अल्फाज में अपने रब को याद कर लेता हूं, तब भी अच्छी बात है। मैं जनाब नमाज में बहुत लंबी लंबी सूरतें तो नहीं पढ़ता, बस क़याम और रुकू और सजदे कर लेता हूँ। डरता रहता हूँ कि पता नहीं मेरी नमाज कबूल भी हुई कि नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में क़याम, रुकू और सजदे ही मंजूर होने हैं। पढ़ा क्या, इस पर जरा फोकस कम किया जाएगा। हाँ, आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि आप अच्छी तिलावत करें, अच्छी किरात के साथ, अच्छी तजवीद के साथ, मखरज अच्छा हुआ, कि अल्फाज की अदायगी अच्छी, दुआएं सब याद करें, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन असल मकसद क्या है? असल मकसद बंदे का उसके रब के साथ रब्त रखना बहुत जरूरी है। वो कभी दुआओं की शक्ल में, कभी कुरान की तिलावत की शक्ल में, कभी नमाज, क़याम, रुकू और सजदों की शक्ल में, कभी दुरूद पाक की तस्बीहों में, कभी जिक्र अज़कार में, कभी महाफिल जिक्र में, कभी अकेले में चुपके चुपके अल्लाह को याद करने में। बंदे का उसके रब के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। फिर क्या होगा? फिर आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी कब्र भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। ये सादा सी बात, ये सादा सा पैगाम कि अगर आप अपनी दुनिया संवारना चाहते हैं, अपने रब से जुड़ जाएं, उसको याद किया करें, दुआओं में याद किया करें, हर वक्त उसका जिक्र किया करें। वक्त नमाज आए फौरन सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ रुख किया करें। नहीं जी, मस्जिद बहुत दूर है, या मैं काम पे हूं, जा नहीं सकता, टाइम नहीं है, या नमाज का वक्त जमात का गुजर गया, ठीक है, अपनी नमाज पढ़ें। लेकिन आप उसको भूल जाएं, उसकी तरफ मतवज्जो ही ना हो, आपकी दिल और आपकी जुबान उसके जिक्र से तर ही ना हो, उसको याद ही ना करती हो, तो बाबा आप कैसे सुकून पाएंगे? आप कैसे कामयाब जिंदगी पाएंगे? आपको कैसे इस दुनिया में कामयाबी हासिल होगी? इस दुनिया में कैसे आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं? भाई दुनिया में तो खुशी भी है, गम भी है, तकलीफें भी हैं, बीमारियां भी हैं, शिफाएं भी हैं, कामयाबियां भी हैं, नाकामियां भी हैं, दुख भी हैं, सुख भी हैं, सब कुछ है। ये तो पूरा क्या कहते हैं, पैकेज है, वैरायटी ऑफ एवरीथिंग है। लेकिन अपने मामलात को बेहतर करने के लिए दुआओं से और जिक्र से मदद हासिल करें, कुरान की तिलावत से और नमाज से मदद हासिल करें, ताकि आपकी दुनिया अच्छी हो जाए।
अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर गम नहीं आएंगे? नहीं, फिर भी आएंगे। कोई ये कहे कि नहीं जी नहीं, मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा परहेजगार हूँ, मुत्तकी हूँ, मुझे तो गम आना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गम फिर भी आते हैं, परेशानियां तकलीफें फिर भी आती हैं। तकलीफ आती है पर तकलीफ दिए बगैर ही गुजर जाती है। गम आता है लेकिन बंदा गमज़दा होता ही नहीं है और गम गुजर भी जाता है। परेशानियां आती हैं, बंदा अभी ऐसे पलट के परेशानी की तरफ देखता ही है तो परेशानी चली भी जाती है। अल्लाह पाक अपने करम से वो दुख, वो तकलीफें, वो परेशानियां आपके लिए आसान कर देता है। बस ऐसे करके सिर्फ गुजार देता है उसमें से कि हाँ हाँ भाई, इस पर भी परेशानी आई थी, इस पर भी तकलीफ आई थी। पर तकलीफ हकीकत जाने फिर तकलीफ नहीं देती। और अगर ऑपोजिट देखें, दुनियादार हो कोई आदमी, दुनिया के मामले में उलझाओ तो देखें उसे कितनी तकलीफ होती है, फिर तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, उसका दुख देखें कितना प्रलॉन्ग हो जाता है, उसके मामला देखें कैसे उलझ जाते हैं। क्यों? वो अपने रब से जुड़ा हुआ नहीं है। जो लोग रब पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह ही की बारगाह से मांगते हैं, अल्लाह उनको मायूस नहीं करता। बस ये बहाने, ये रास्ता इख्तियार कर लें कि भाई मैंने घर से निकलना है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, पढ़ के निकले। भाई मैं सफर पे जा रहा हूँ, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, पढ़ लें। सवारी पे बैठे हैं, बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम, पढ़ लें। खाना खाने लगे हैं, दुआ पढ़ लें। खाना खा चुके हैं, दुआ पढ़ लें। क्या होगा कि आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी शुरू हो जाएगी, आपका दिल उसी की तरफ रुजू करने लग जाएगा। हर वक्त, हर मामला, कोई भी काम, भाई आप खाना खाएं, दुआ पढ़ के हजूर की सुन्नत के मुताबिक खाएं, आपका खाना खाना आपका इबादत हो गया, सफर करना आपका इबादत हो गया, काम पर कारोबार करना इबादत हो गया। भाई कोई मामला आपका बगैर इबादत के है ही नहीं, तो लोग कैसे मुस्तजाब दावत हो जाते हैं, कैसे अरफा व आला हो जाते हैं? इसी तरह तो होते हैं कि वो अपने रब की याद से गाफिल नहीं होते, हर वक्त वो अपने रब की तरफ मतवज्जो होते हैं, हर काम के करने से पहले उसे याद कर रहे होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम करने के लिए उस पर भरोसा कर रहे होते हैं, उस पर तवक्कल कर रहे होते हैं, हर काम के होने पर उसका शुक्राना अदा कर रहे होते हैं, कभी क़याम की शक्ल में, कभी रुकू और कभी सजदे की शक्ल में। खुदारा अपने रब की तरफ मुंह कर लें, अपना किबला दुरुस्त कर लें। ये दुनिया पीछे रह जाएगी, बल्कि पीछे नहीं रह जाएगी, ये कहना चाहिए पीछे पीछे आ जाएगी। कोई चीज आपकी ये नहीं रहेगी कि ये इनकम्प्लीट हो गई, भाई ये पूरी नहीं हुई या ये मामला ठीक नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाना शुरू फरमा देते हैं, अल्लाह आपकी इल्तिजाएं कबूल फरमाते हैं। अपने लिए क्या, किसी और के लिए भी दुआ किया करेंगे, अल्लाह वो भी कबूल फरमा लिया करेगा। दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाती हैं, जुबान सैफ हो जाती है, दिल साफ हो जाता है, उजला हो जाता है, पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा हो जाता है, कुलूब इज़हाम को इत्मीनान नसीब होता है, जिस्म इत्मीनान पकड़ता है, तबीयत और मिजाज कफ़ात शारी में और सब्र और शुक्र की तरफ आ जाती है। नमाज बड़े यकसुई के साथ, बड़े ध्यान और ज्ञान के साथ बंदा पढ़ने लग जाता है। क्यों? हवा हिरस खत्म होगी ना, उसे तो पता है कि मुझे तो हर चीज अब मेरे रब की बारगाह से आ रही है, मैं तो उधर मतवज्जो हूँ, मैं तो उधर देख रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको मुझे कामयाबी अता फरमाए, बहुत सारा लुत्फ व करम अता फरमाए, बहुत सारी खैर और बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें बहुत सारी तरक्कियां अता फरमाए। अपने रब से जुड़ जाएं, बस जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से जुड़ जाएं। भाई मुझे कुरान की तिलावत करना बहुत पसंद है, फेयर इनफ,
कोशिश किया करें, मैक्सिमम तिलावत किया करें। भाई मुझे नमाज में बड़ा सुकून मिलता है, अच्छी बात है, नमाज पढ़ें, नमाज में नवाफिल बढ़ा दें, तहज्जुद शामिल कर लें, अशराक शामिल कर लें, नमाज बढ़ गई, नमाज में सुकून मिलना शुरू हो गया। नहीं जी, मुझे दुरूद पाक बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा सुकून महसूस करता हूँ जब मैं अपने आका व मौला पर हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ। अच्छी बात है, दरूद पाक पढ़ा करें। नहीं जी, मुझे जिक्र में बड़ा मजा आता है, मैं अल्लाह 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 जब करता हूँ मैं खो जाता हूँ इसमें। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का जिक्र किया करें। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे, कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जिस तरह कोई मजदूर मजदूरी कर ले और फिर अपने मालिक की तरफ मतवज्जा हो कि अब मुझे उजरत मिलने वाली है, बस ऐसी ही कैफियत अपने ऊपर तारी कर लें कि हमने महफिल ज़िक्र की है, उसमें ज़िक्र भी किया, नात शरीफ भी सुनी, हम्द भी, अल्लाह की तारीफ भी सुनी, कुरान की तिलावत भी सुनी, मनकबत भी सुनी, कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना। बस अल्लाह पाक कबूल फरमा ले और कबूल फरमाते हुए आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अरजा अता फरमा दे। आमीन। या रब्बे जुल जलाल, या मालिकुल कुद्दूस, तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, हक अदा नहीं किया, कोशिश की है, कबूल व मकबूल फरमा। थोड़ा किया, तू ज्यादा करके कबूल फरमा। हम हर बार करते हैं मालिक, तेरे नाम की महफिल सजा के बैठ जाते हैं। कहाँ कहाँ साथी, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, खालिस्तन तेरे जिक्र के लिए इकट्ठे हुए। या अल्लाह, सबकी हाजिरी कबूल फरमाते हुए ये महफिल जिक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह हमें हक कहने की, हक सुनने की और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें जिक्र व फिक्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। अपना फक्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमानो पनाह अता फरमा। अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी औलादों नस्लों पर अपना रहम अता फरमा। अल्लाह हमें खुशहाली, खैर व बरकत अता फरमा, तस्लीम और रजा अता फरमा, इत्मीनान और सुकून अता फरमा, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। हमारी ज़ाहरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, दीनी, दुनियावी जो भी दुख, तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे आबाओ जदाद के, हमारी औलादों के, आने वाली नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तू माफ करने को पसंद फरमाता है, तुझसे बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं है। तेरी बारगाह से, तेरे महबूब के वसीला से मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। हमारी तमाम गलतियां, खताएं, कोताहियां, सुस्तियां, लग्जिशें, बेअदबियां सब माफ फरमा दे। सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे, जो हमने जानबूझ के किए, अनजाने में किए, सब माफ कर दे। अल्लाह अपने महबूब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से माफी आम फरमा दे। जिसने भी हाथ उठा रखे हैं, जो भी इस दुआ में शामिल हो गए हैं, जहां कहीं भी हैं, सामीन हैं, नाजरीन हैं, जो सुन रहे हैं, हाथ उठा के आमीन कह रहे हैं, अल्लाह सब के लिए दरे तौबा खोल दे, माफी के दरवाजे खोल दे, सब पर रहम वाला मामला फरमा दे। अल्लाह हमारी कोई आजमाइश है तो खत्म कर दे, कोई गिरफ्त है तो छोड़ दे, माफ कर दे। कोई कोताही, सुस्ती, कोई आड़े आ गई, कोई मुसीबत बला आई हुई है तो अल्लाह अपने करम से दूर कर दे। हमारे लिए खुशहाली के दरवाजे खोल दे, हमारे लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हम पर रहम फरमा
क्योंकि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांग रहे हैं, तेरे महबूब के सदके वसीले से मांग रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, तेरा जिक्र करते रहे, अब हाथ उठा के तेरी बारगाह से इल्तिजाएं कर रहे हैं। हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा ले। जहां जहां भी कोई या अल्लाह तेरी बारगाह में झोली पसारे, हाथ उठाए, हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, अल्लाह सबकी दिली हाजात पूरी फरमा दे, सबकी नेक तमन्नाएं पूरियां फरमा दे, सबकी दिली आरजुएं पूरी फरमा दे, सबकी दुख तकलीफों को दूर फरमा दे, सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। अल्लाह जो हमारे आबा अजदाद दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। हमारे एक साथी बहुत प्यारे मोहसिन साथी जिनकी दुआ के लिए कहा गया, खुसूसन इटली के साथियों ने दुआ पेश की, अल्लाह राय नवाज साहब को या अल्लाह जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमा। शहीद हुए नेक आदमी, बाशरा, बहुत नेक पाकबाज आदमी, अल्लाह पाक उनकी कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह जब रोज़े महशर मैदान में हाजिर हों तो अल्लाह उनका चेहरा तेरे नूर से चमक रहा हो, तेरे अर्श के नीचे उन्हें जगह नसीब मिले, तेरे अर्श के साए में बैठे हों, हजूर की शफाअत कुबरा नसीब हो, जन्नतुल फरदौस में आला मकाम हासिल हो। ऐसा करम अता फरमा। जो भी सोगवार लवाहकीन रह गए पीछे, सबको सब्र जमील अता फरमा। जितने भी सामीन और नाजरीन देखने सुनने वाले हैं, आमीन कहने वाले हैं, हाथ उठाए बैठे, इनके बुजुर्गों में, आबाओ अजदाद में, मशाइख में, असातिज़ा में, सिबलिंग्स में, इनके इन लॉज में, जहाँ कहीं भी कोई ननियाल ददियाल में कोई मर्द औरतें बच्चे वफात पा चुके, शहीद हो चुके, अल्लाह सब के लिए दुआ गो हैं। सबकी कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा, सबको गरीक रहमत फरमा, सबको हजूर की शफात कुबरा नसीब हो, सबके नामा अमाल उनके दाएं हाथ में हूँ, सबका पुल सरात से गुजरना आसान हो, सबको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम हासिल हो। तेरे महबूब के सदके से, तेरे महबूब की शफात कुबरा की तौफीक अल्लाह ऐसा करम अता फरमा। अपने अमलों पर कोई मान नहीं है, तौबा करते हैं, किसी चीज पर मान नहीं है, बस हमारा मान ये है कि तू हमारा रब है, हम तेरी मखलूक हैं, हमारा मान रख लेना। तेरा महबूब और हमारे आका व मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं, ये हमारा मान है। अल्लाह हमारा मान रख लेना, हमारा मान रख लेना। हमारे आबाओ अजदाद पर भी रहम करम फरमाना। हमारे साथी जो राय नवाज साहब चले गए उन पर भी अपना खास करम अता फरमाना, उनकी फैमिली पर भी अपना खास करम अता फरमाना, और जितने भी बाकी साथी हैं अल्लाह पाक उनके भी अजीज़ो करबा पर अपना खास रहम करम अता फरमा। अल्लाह जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई है, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा, आपके आस्थानों की खैर फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अल्लाह इन वलियों की फीज़ो बरकत से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन वलियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन वलियों की दुआओं में से हमें भी पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा, करम अता फरमा। अहले करम में हमारा शुमार फरमा ले। हर उस काम की हिम्मत, ताकत और तौफीक दे दे जिसमें तेरी और तेरे महबूब की रजा और खुशी शामिल हो। हर बुराई, गंदगी, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। हम बड़े कमजोर हैं, शैतान बड़ा ताकतवर है, हम बड़े आजिज हैं, नफ्स बड़ा चालबाज है। अल्लाह हम पर अपना करम अता फरमा। शैतान की शैतानियों से, नफ्स की हलाकतों से हमें बचा। अल्लाह उसके मकरो फरेब से हमें बचा। अल्लाह काज़बीन से हमें बचा, हासदीन से हमें बचा। हमें हर बुराई से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है दीन इस्लाम पर इस्तकामत के साथ गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है तेरे रहमो करम के साथ गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है दिल और जुबान तेरे जिक्र से तर रहे, ऐसा करम अता फरमा। बस आजिज़ी से, मोहब्बत से, खैरियत से इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। या अल्लाह कलमे और ईमान के साथ रुखसत हो जाएं, तेरी रजा के साथ रुखसत हो जाएं, अपने सीनों को तेरे जिक्र से गरमा के रुखसत हो जाएं, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह
इनाम याफ्ता लोगों में हमारा शुमार फरमा। या अल्लाह सरात मुस्तकीम पर हमें कारबंद फरमा, इस्तकामत अता फरमा, दीन हक पर कायम दायम फरमा, दीन की समझ बूझ अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम सामीन और नाजरीन को आज की महफिल बहुत मुबारक हो। और दुआ है मेरी कि इस दुआ में से जो मांगी गई, दिल की अथाह गहराइयों से मांगी गई, जो हाथ उठाकर लरजती हुई जुबानों से मांगी गई, जो नम आंखों के साथ मांगी गई, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन हिस्सा अता फरमाए इस दुआ में से, और आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी हो, खैर वाली हो, कामयाबी वाली हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।